براہ راست اس کو آپ کو لے چلیں گے تہران، جہاں محسن نقوی اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. My brothers for hosting this conference here in Tehran. The second thing which I would like to mention before other things is that I want to congratulate Iran and my brother Sikandar again on this great victory which Iran achieved. During the war, Pakistan was openly condemning the attack on Iran. We were fully supporting the right of defense of Iran. And the Pakistani people were standing right next to the people of Iran. They are our brother and we will remain as brothers. Pakistani Prime Minister and other officials were active and they tried their level best, whatever they could do, and your ambassador Amiri is sitting here. He is witness to all that what we were doing in Pakistan and how we were coordinating with other countries. As we all know that Arabeen is one of the most participated event of the world. It's several million people visiting Iraq within 2 days, 3 days. The management of the event is one of the most difficult thing, but the way Iraqi government and the Iraqi Interior Ministry handled that, our salute to them. And I would like to extend my full support, whatever way we can, to the Iraqi Interior Minister, that whatever way we can help and participate in the event, we will be more than happy to do that. Here I want to add something, that from January 1st, 2026, we will not be allowing any Pakistani to leave Iraq without Zaireen Group organizer, which means that we will register people who will be allowed to take the groups to Iraq, and they were bound to bring back all the people who will be going with them. There will be no individual other than the embassy themselves issue special visas, but the majority of the Pakistanis will be bound to go with the groups, so that we can stop this illegal issue which Iraq is facing. The people who are overstaying there, the people who have started working there, we need to stop this, and I am totally against all those who are staying illegally there. So we will be needing Iran and Iraq help to implement that from January 1st, 2026. We want to personally thank Iran and Iraq, the way they are looking after Zaireen, which are in millions. It's not an easy job. That Ayatollah Khamenei, the rabbi of Islamic Republic of Iran, the way he stood up and led the war, again, we want to congratulate him on this great success. Thank you so much. تہران میں زائرین کے محسن نقوی کا تہران میں کانفرنس سے خطاب جاری تھا. ان کا کہنا ہے کہ پاکستانی وزیر اعظم متحرک رہے. ایرانی سفیر بخوبی واقف ہیں. پاکستان نے ایران کے لیے ہر فورم پر آواز اٹھائی ہے. خبر دیں آپ کو، ڈیپٹی کمشنر لاہور سید موسیٰ رضا نے تحصیل راوی کا تفصیلی دورہ کیا اور انتظامی امور کا جائزہ بھی لیا ہے. اس موقع پر چیف آفیسر MCL شاہد عباس کاٹھیا، اسسٹنٹ کمشنر راوی اور دیگر حکام بھی ہمراہ تھے.
डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रजा ने शादरा चौक, बेगम कोट, काला खताई रोड समेत मुख्तलिफ इलाकों में इंतजामी उमूर का जायजा लिया है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर का कहना था कि जिला इंतजामिया लाहौर को तजावुज़ात से पाक और साफ सुथरा शहर बनाने के लिए मुतहरिक है। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर रावी सैयदा सुंबुल जावेद ने निज़ामी उमूर पर तफसीली ब्रीफिंग दी, जबकि DC लाहौर ने कहा है कि शहरियों को साफ सुथरा माहौल फराहम करना इंतजामिया की अवलीन तरजीह है। शहर से बैनर्स और इसके हवाले से फौरी खात्मा किया जाएगा। सेवरेज और निकासी आपके मसाइल फौरी हल किए जाएं। मामूलात जिंदगी के आगाज से कबल सफाई इंतजामात मुकम्मल किए जाएं। रिहायशी इलाकों से झुग्गियां और मवेशियों के बाड़े फौरी खत्म किए जाएं। उधर फैसलाबाद में वजीर आला पंजाब की हिदायत पर खुसूसी अफराद को व्हील चेयर्स और मददगार आलात फराहम किए गए हैं। तकरीब में साबिक अरकान असम्बली, जिले अफसरान समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। इस हवाले से देखते हैं नुमाइंदा आफ्ताब नवाज की रिपोर्ट। व्हील चेयर्स और दीगर मददगार आलात फराहम किए गए। म्यूनसिपल कारपोरेशन हाल में सोशल वेलफेयर एंड बैतल माल के ज़ेरे एहतमाम नकदा तकरीब में साबिक पार्लियामेंटेरियन हाजी अकरम इंसारी, फकीर हुसैन डोगर, मियां ताहिर जमील, मुस्लिम लीगी रहनुमाओं, डायरेक्टर सोशल वेलफेयर एंड बैतल माल खालदा रफीक, डिप्टी डायरेक्टर आमना हक, दीगर अफसरान और खुसूसी अफराद के हमरा शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। आज मुझे खुशी हो रही है CM साहबा ने प्रोग्राम शुरू किया है, इस पर आज उन लोगों को भी ये आम लोगों के साथ मिलाना जो है, इन व्हील चेयर से को माली इमदाद देने के लिए, को बाकी सहूलियात देने के लिए ये ज़रूरी था कि हमें ऐसे लोगों को साथ मिलाने के लिए। ये ज़िंदगी तो है, लेकिन मैं समझता हूँ अगर इनको सहूलियात होंगी तो इससे इनमें बेहतरी आएगी। इनका जो मोराल है वो अल्लाह की मदद से बंद होगा। मैं CM साहबा को और मिनिस्टर साहब को खास तौर पर तहसीन पेश करता हूँ। डायरेक्टर सोशल वेलफेयर एंड बैतल माल खालदा रफीक ने बताया कि इसमें व्हील चेयर्स, इलेक्ट्रिक व्हील चेयर्स, मोटरसाइकिल, क्रचेस, प्रोस्थेटिक्स, वाइट कैन, हेयरिंग एड, मतलब मल्टीपल एक सीरीज ऑफ डिवाइसेस हैं, ताकि हर वो शख्स जिसको किसी भी तरह की डिसेबिलिटी का सामना है उसके लिए हम एक आसानी पैदा करने की हमारी एक छोटी सी एफर्ट है। हुकूमत की जानिब से मदद मिलने पर मजदूर अफराद में जीने की नई उम्मीद और हकीकी खुशी ने जन्म लिया है और इसका अक्स इनके चेहरों पर दिखाई देने वाली मुस्कुराहट और आंखों में झलकती रोशनी से बखूबी देखा जा सकता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से मजदूर अफराद की बहाली के लिए किए जाने वाले इकदाम लायके तहसीन। कैमरामैन हसन चौहान के साथ आफ्ताब नवाज, 5 न्यूज़, फैसलाबाद। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर राना एहसान अफजल ने कहा है कि गुजरांवाला चैम्बर एक बड़ा चैम्बर है जो बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल के लिए आवाज़ भी उठाता है। गुजरांवाला में चैम्बर एंड कॉमर्स में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए कॉमर्स राना एहसान अफजल ने कहा कि गुजरांवाला एक बड़ा चैम्बर है जो बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल के लिए आवाज़ उठाता है। वज़ीर आज़म की जो काविश थी कि उड़ान पाकिस्तान के तहत पाकिस्तान को ऊपर लेकर जाना है, वो सफ़र जारी है। पिछले 1 साल में आप तमाम लोगों के ताउन से और हुकूमत की कोशिश से इकोनॉमिक अचीवमेंट मुमकिन हुई है। पहले हम 28% महंगाई की शरह पर खड़े थे, जो हमने 3 से 5% पर कर दी है। सूद रेट में हम 22% पर खड़े थे, जो अब हम 11% पर खड़े हो चुके हैं। जबकि पाकिस्तान के डिफॉल्ट करने की बातें हो रही थीं, 4 जुलाई को जो फिगर्स आए हैं इसमें स्टेट बैंक के जीरो रिजर्व $14.5 अरब पर खड़े हैं। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि पाकिस्तान मुस्तहकम हो चुका है। 100 बिलियन का टारगेट उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम का है। यही वो लोग हैं जो मुल्क को ऊपर लेकर जा सकते हैं। मुझे यकीन है कि गुजरांवाला डिवीजन एक्सपोर्ट में इजाफा करेगा। चैम्बर का ये सेंटर एक्सपोर्ट बढ़ाने में अपना अहम किरदार अदा करेगा। वजीर आज़म की हिदायत के मुताबिक कोई भी पॉलिसी बनाने में तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत करते हैं। रिसर्च, डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग सेंटर्स का इफ्तिताह होने जा रहा है। खबर शामिल करेंगे शिकारपुर से, जहां गुज़श्ता दिन शिकारपुर के इलाके ढक बाजार में क्रॉकरी की दुकान पर प्राग के मामले पर 27 घंटे से भी ज्यादा आग पर काबू पाया जा सका है। ताहम दुकानदार का कहना है कि फायर ब्रिगेड सिस्टम मुकम्मल नाकारा होने के बायस 6 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। आगे जानते हैं इस वाक़े के हवाले से हमारे नुमाइंदे फताउल्लाह की इस रिपोर्ट में। बिल्कुल इस वक्त मौजूद हूँ शिकारपुर ढक बाजार के अंदर,
जहाँ गुज़िश्ता दिन यहाँ पर आग लगी थी, जिससे जो दुकान थी क्रॉकरी की वो मुकम्मल तौर पर जल चुकी है, 100% से भी ज़्यादा जल चुकी है। अब उसमें कुछ नहीं बचा। इस वक्त मौजूद हूँ मैं वहाँ पर ही ढकबदा शिकारपुर में, और वहाँ दुकान के जो ऑनर है वो हमारे साथ मौजूद है। उनसे जानते हैं कि आया ये आग किस वजह से लगी, वजह क्या बनी। और आपने मौके पर फायर ब्रिगेडियर का दफ्तर इतना दूर नहीं है, वो करीब ही है, क्या उनको कॉल की, इंतजामिया को कॉल की, उनकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स आया? हमारे साथ मौजूद है दुकानदार काशिफ, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी बताइए कि कैसे लगी आग, क्या मसला था, और इंतजामिया को आपने कॉल वगैरह की तो आपकी इतनी बड़ी शॉप थी तो क्या रिस्पॉन्स मिला, वजह क्या थी आग? हम सुबह 9 बजे धुआं निकल रहा था, किसी ने कॉल किया तो हम आए दौड़ते हुए। इस वक्त धुआं निकल रहा था, सिर्फ आग नहीं। हमने इंतजामिया को कॉल की, वो थोड़े लेट आए, और कल इसकी वजह से उसके प्रेशर नहीं था पानी में, वो सही टारगेट पे जो ना आग नहीं बुझा सके। इस वजह से लेट होती हमारे आंखों के सामने हमारी दुकान जलना शुरू हो गई। कितना नुकसान हुआ? हमारा तकरीबन डिपार्टमेंटल स्टोर है, तकरीबन 6 करोड़ रुपए की इन्वेंट्री थी, और तकरीबन 8-10 करोड़ की प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी भी मुकम्मल डैमेज हो गई है, और मेरी सारी इन्वेंट्री जल के राख हो चुकी है। 27 घंटे आग चली है। 27 घंटे में अगर फर्स्ट उसका फायर ब्रिगेड वाला अगर सही टारगेट पे पानी करता ना, तो वो आग नहीं फैलती। आपका मुतालबा क्या है? हमारा आपके सामने है सब चीज। मेरी सारी इन्वेंट्री, मेरे पास तकरीबन 15 बंदे काम करते हैं, उनका रोजी रोजगार है। अब आपके सामने है सारी दुकान। अभी मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि आप हमारे ऊपर नजर करें, देखें, और जो लीगल बात है आपके सामने है सारी। जी बिल्कुल मौजूद है इस वक्त बाजार में। काशिफ भाई का यही कहना था कि आग 27 घंटे चली है, और फायर ब्रिगेड का जो अमला है उसके पास पानी में प्रेशर नहीं था, जिसकी वजह से ये करोड़ों रुपए की मालियत का जो नुकसान हुआ है। दूसरा काशिफ भाई का यही कहना है कि अगर इंतजामिया वक्त पर पहुंचती तो यहाँ इनके पास जो 15 बंदे हैं उनका रोजी रोटी भी हो सकती थी। काशिफ भाई का मुतालबा है कि अब इनका अजाला किया जाए, ताकि इनके साथ ही जो इनके 15 मुलाजमीन हैं उनकी रोजी रोटी भी जारी रह सके। जी। सूबाई वजीर अक़लियती उमूर रमेश सिंह अरोड़ा की सियालकोट के दुआया तकरीब में शिरकत की है। सूबाई वजीर बराए अक़लियती उमूर पंजाब का कहना था कि आईन पाकिस्तान में तमाम शहरियों को बराबरी के हुकूक हासिल हैं। ज़िला सियालकोट डस्का रोड संबड़ियाल में मुनक़िदा एक रोज़ा दुआया तकरीब में सूबाई वजीर बराए अक़लियती उमूर सरदार रमेश सिंह अरोड़ा ने कहा कि पाकिस्तान की धरती सबकी सांझी धरती है, यहाँ बसने वाला हर शहरी बराबर का हक रखता है, और आईन पाकिस्तान हर शहरी को मसावी हुकूक, मजहबी आज़ादी और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। हुकूमत पंजाब ने अक़लियतों को न सिर्फ इज्जत दी बल्कि इन्हें अपना सर का ताज करार दिया है, जो अक़लियत दोस्त विजन की वाज़े अक्कासी है। दुआ इज्तिमा में मेंबर एडवाइजरी काउंसिल पंजाब सरदार जसकरण सिंह और डॉक्टर शाहिद परवेज ने भी शिरकत की है। तकरीब का मकसद बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी, मजहबी रवादारी, मुल्क की सलामती और अक़लियती बरादरी के इत्तेहाद को फ़रोग़ देना था। उधर मंडी बहाउद्दीन में वफाकी वजीर चौधरी सालिक हुसैन की जानिब से सल्तनत ओमान के वफ़द के एजाज़ में बावकार इशायत दिया गया है। इशाये में सल्तनत ओमान के सफ़ीर फ़हद बिन सुलेमान बिन खल्फ अल खरूसी, साबिक़ चीफ जस्टिस शेख इसाक अल बुसैदी, ओमान हुकूमत के कानूनी मुशीर शेख अब्दुल अजीज़ अल बुसैदी, मुमताज़ कारोबारी शख्स शेख अब्दुल मालिक अल बुसैदी और दीगर की शिरकत की गई। चौधरी सालिक हुसैन की जानिब से सल्तनत ओमान के वफ़द के एजाज़ में इशाये के मौके पर पाकिस्तान और ओमान के दरमियान दुतरफ़ा ताल्लुकात, अफरादी कुव्वत, कानूनी ताउन और तालीम के शुबे में इश्तराक को मज़ीद फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल किया गया। सेक्रेटरी ओवरसीज़ पाकिस्तानी ब्रांड्स एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट नदीम असलम चौधरी और शहबाज ज़हीर ने भी शिरकत की है। वफाकी वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन ने ओमानी मेहमानों को खुशामदीद कहते हुए कहा कि पाकिस्तान और ओमान के ताल्लुकात मजहबी, तारीख़ी और सकाफ़ती रिश्तों पर कायम हैं और वक्त के साथ ये ताउन मज़ीद गहरा हो रहा है। रुक करेंगे पाक पतन का, जहां पंजाब फूड अथॉरिटी ने जालसाजी का एक और मंसूबा नाकाम बना दिया है। फूड सेफ्टी टीम ने जमाल चौक में बेवरेज प्लांट पर कार्रवाई करते हुए 2400 लीटर जाली ब्रांड की मशरूबात जब्त करके 100 लीटर फ्लेवर सिरप भी तल्फ कर दिया है। डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी के मुताबिक मारूफ ब्रांड्स के नाम से जाली फ्रूट ड्रिंक्स तैयार की जा रही थी। फ्रूट ड्रिंक्स के सैंपल लेकर मजीद जांच के लिए लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए हैं। जालसाजी पर फूड बिजनेस मालिकान के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी गई है। DG फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद का कहना था कि इंसानी सेहत के दुश्मनों को रियायत नहीं दी जाएगी।
कसूर और इसके गिरदोनवाह में बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश से मौसम खुशगवार हो गया, जबकि नशेबी इलाकों में पानी जमा होने से शहरियों को परेशानी का सामना है। ब्यूरो चीफ कसूर सज्जाद अंसारी से मजीद जानते हैं। तो कसूर में भी सुबह से जो है स्याह बादलों ने जो है अपने डेरे जमा रखे हैं और वक्फे के साथ ज़िला भर में जो है ना वो बारिश का सिलसिला जारी है। मैं आपको बताता चलूँ कि महकमा मौसमियात की जानब से जो है वो 17 जुलाई तक जो बारिशों की पेशीन गोई की गई थी और उस वक्त कसूर में कहीं तेज़ और कहीं पर हल्की जो ना तेज़ हवाओं के साथ बारिश जो है ना वो जारी है। मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया है, लोग इंजॉय भी कर रहे हैं, लेकिन बाज़ मकामात पर जो है लेस्को की जानब से जो है बिजली की सप्लाई जो है ना वो बार बार जो है ना मुनक़ता हो रही है। मैं यहाँ आपको बताता चलूँ कि कसूर के जो नशेबी इलाके हैं वो इस वक्त पानी की जद में आ चुके हैं और जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का अमला है वो भी फील्ड में मुतहरक नज़र आ रहा है। अगर बात की जाए यहाँ पर मैं आपको बता दूँ दरिया सतलुज की, तो दरिया सतलुज में इस वक्त जो है वो दरिया सतलुज की सतह जो इस वक्त है मानसून बारिशों के बाद 11 फुट पर जो है ना रिकॉर्ड की गया है। उस पर 4000 क्यूसेक का जो रेला जो गुजर रहा था और अभी तक कोई भी ऐसी जो सैलाबी सूरत हाल है वहाँ पर वो देखने में नहीं आ रही। ज़िली इंतज़ामिया की तरफ से भी जो है वो सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए मुकम्मल इंतजाम किए हुए हैं। तमाम अदारे को डिप्टी कमिश्नर की तरफ से अलर्ट रहने का जो ना अहकाम जारी किए गए हैं। जी, सांगला हिल की गुंजान आबादी में वाक़ मोहम्मद पार्क, जो हुकूमत वक्त की अदम तवज्जो के बायस मकीनों में बीमारियां फैलाने का सबब बन चुका है। बारिश और सीवरेज का गंदा पानी लोगों के लिए वहां जान बवाले जान है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा 5 न्यूज़ मियां जिया से। 13 साल कबल बनाया जाने वाला मोहम्मद पार्क, जो कि गंजान आबादी में मौजूद है, ये पार्क सिटीज़न कम्युनिटी बोर्ड के तहत बनाया गया था, जिसकी तखमीना लागत 1 करोड़ रुपये थी। लेकिन बदकिस्मती से गवर्नमेंट की अदम तवज्जो के बायस ये खंडरात और वीरानी का मंजर पेश कर रहा है। यहाँ पे मुख्तलिफ जानवर जो हैं वो अपनी चरागाह इसको समझते हुए यहाँ पे मौजूद होते हैं। लोगों के लिए सैर व तफरीह के लिए जो आने वाले लोग थे उनके लिए जो झील बनाई गई थी, बदकिस्मती से वो गंदे जोहड़ में तब्दील हो चुकी है, जिससे डेंगू और बहुत सारी मुख्तलिफ बीमारियाँ फैल रही हैं। इस वजह से अहले इलाका बहुत ज़्यादा परेशान है कि तफरीह के लिए बनाया जाने वाला ये पार्क अब गंदगी की वजह से ये बीमारियां फैला रहा है। लोगों का ये कहना है कि डीसी ननकाना साहब और मकामी इंतज़ामिया इस पे खुसूसी तवज्जो दें ताकि ये पार्क सैर के लिए मुयस्सर हो सके। जी, खाने वाले में भी पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया हुआ है। सब्जियों की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगीं, जिससे शहरी खासे परेशान दिखाई देते हैं। सब्जियों में टिंडे, तोरियां, भिंडी, शलजम और दीगर सब्जियां महंगे दाम पर फरोख्त हो रही हैं। मजीद जानते हैं इस हवाले से वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे आमिर नसीर से। जी बिल्कुल, पंजाब की तरह सियालकोट में भी चीनी का जो बुरहान है वो सर चढ़ कर बोलने लगा। चीनी की जो रोजमर्रा की जो किल्लत है वो सामने नजर आ रही है। मैं इस वक्त सियालकोट के कदीमी बाजार जो लाही बाजार में मौजूद हूँ, जहाँ पर मुतअद्दिद किराना। जी बिल्कुल, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होते ही खानेवाल में भी सब्जियों की कीमतों आसमानों से बातें करने लगी। मैं इस टाइम मौजूद हूँ खानेवाल मरेड़ी बाजार में, जहाँ पे जो है वो सब्जी महंगी दाम पे फरोख्त हो रही है। मेरे साथ एक दुकानदार मौजूद है, इनसे जानता है। जी भाई बताइएगा, सब्जी इतनी महंगी है, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सब्जी इतनी महंगी है जी, मंडी में सब्जी मिल नहीं रही है और यहाँ पे बिक्री कांटे इतने हैं, क्या करें, परेशान है। सुबह से शाम मेहनत करते हैं, शाम को सब्जी इतनी सुबह टाइम फेंकनी पड़ती है सारी सब्जी। मेरे साथ एक शायरी मौजूद है, इनसे जानते हैं जो खरीदारी के लिए सब्जी लेने के लिए आया है। जी भाईजान, आप सब्जी लेने के लिए आए हुए हैं, सब्जी इतनी महंगी दाम पे फरोख्त हो रही है, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सब्जियाँ बहुत ज़्यादा महंगी हैं। सब्जियाँ महंगी होने की वजह भी आपको मालूम होगी कि जैसे पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई हैं, तो उस वक्त से ही जो है एशिया खुर्दनोश की तमाम की कीमतें जो है वो बढ़ गई। गरीब आदमी की पहुंच से सब्जियां भी दूर हो गई हैं और चिकन और बीफ तो पहले ही दूर था। लिहाजा हमारी हुकूमत वक्त से यही अपील है, गुजारिश है कि फिलफौर पेट्रोल और डीजल की कीमतें मुनासिब की जाएँ, ताकि एशिया खुर्दनोश की कीमतें मुनासिब हों और गरीब आदमी अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजार सकें। जी, आपने बात सुनी शायरी का, ये कहना था कि सब्जी इतनी महंगी है, जहाँ पे ये कद्दू है, तोरी है, भिंडी है, अरबी है, हर चीज़ यहाँ पे महंगे दाम पे फरोख्त हो रही है। गरीब आदमी ये सब्जी भी नहीं खा सकता। इनका कहना था कि मेरा हुकूमत पंजाब से मुतालबा है कि सब्जियों की कीमतों में कमी की जाए ताकि गरीब आदमी सब्जियाँ भी खा सके। दूसरी जानिब सियालकोट गिरदोनवाह में चीनी की बढ़ती कीमतों ने मुंह की मिठास छीन ली है, जबकि आम मार्केट में चीनी 190 से लेकर 200 रुपये फ़ी किलो
फरोख्त हो रही है। मजीद अहवाल जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ उमर अकबर से। पंजाब की तरह सियालकोट में भी चीनी का जो बुरहान है वो सर चढ़कर बोलने लगा। चीनी की जो रोजमर्रा की जो किल्लत है वो सामने नजर आ रही है। मैं इस वक्त सियालकोट के कदीमी बाजार जो लाही बाजार में मौजूद हूँ, जहाँ पर मुतअद्दिद करियाना जो है स्टोर्स मौजूद है, तमाम जो रेट्स हैं वो अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, जिसमें इंतजामिया की इसमें गफलत और मुबैना लापरवाही भी नजर आ रही है। इसमें बात करें जो है रेट्स के हवाले से, जो आज जो सियालकोट की मंडी का जो रेट है 50 किलो का जो थैला चीनी का वो 9,300 का बताया जा रहा है। इसके बाद आम मार्केट की बात करें तो इसमें 10,000 से 10,500 तक ये रेट तजावज कर रहा है। इसके साथ पर केजी की हम बात करें तो 200 से 210 205 और कुछ हज़रात 200 तक भी फरोख्त चीनी करते दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ शहरियों में बड़ी तशवीश की लहर पड़ाई जा रही है। रोजमर्रा घर की हर जरूरत जो चीनी है वो इस्तेमाल होती है, जिसमें किल्लत नजर आ रही है। तमाम शहरियों का मुतालबा है कि ये जो चीनी है इसका जो रेट है वो सरकारी तौर पर तायन किया जाए, ताकि गैर जो मुनाफाखोर है, जो मुबैना मुनाफाखोर है, जो वो अपने खुद साख्ता मुनाफा से चीनी का रेट बढ़ा रहे हैं, उससे बचा जा सके। जी रुख करेंगे खानपुर का, जहां 2 घंटे की बारिश ने शहर में तबाही मचा दी है। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगीं। दोनों अंडरपासेस पानी से भर गए हैं। शहरियों को आमदोरफ्त में दुश्वारी का सामना है। मजीद जान लेते हैं खानपुर से हमारे नुमाइंदे सलीम मुगल से। जी बिल्कुल, खानपुर और गिरदो-नवाह में प्री मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। मगर हम बात करें खानपुर की, जहां पर चंद घंटों की सुबह बारिश होने के बाद जो है जगह जगह सीवरेज का पानी जमा हो चुका है। शहरियों को गुजरने में दुश्वारी का सामना है। कुछ शहरी मुझे इनसे बात करते हैं कि क्या कहेंगे इंतजामिया के हवाले से। देखो जी, खानपुर की इंतजामिया तो बिल्कुल सुती पी है। जो टाइम महकमा मौसमियात दसिया कि पूरे मुल्क बारिशां थी सन, खास तौर पर जनूबी पंजाब में बारिशां थी सन। लैन पार के लोगों नाल इंतजामिया मतरई माल सलूक करनी पी है। रहीमाबाद, माला फरीदाबाद, बस्ती जटकी, माला कोकरा, ही टाइम पानी पानी है। तुम्हारे सामने देखो अंडरपास भरे कड़न, कोई इंतजामिया का बंदा क्या नहीं। ही टाइम पूरे चौक चौराहे पानी है। गंडेरी चौक, दुबा मई साहबा चौक, मस्जिद माई साहबा, उतना पानी है। सारा डिप्टी कमिश्नर खुरम परवेज साहब को मुतालबा है कि खानपुर की इंतजामिया को हुक्म दो कि सीवरेज का पानी कढ़ें। अवाम बहुत परेशान है, अवाम लाइनों पे से टप रही है। अल्लाह ना करे कोई हादसा भी हो सकता है। और पाकिस्तान कॉलोनी के अंदर भी इतने हालात ख़राब हुए पड़े हैं, छोटे छोटे बच्चे बीमार हुए पड़े हैं। लाइनों के ऊपर भी देख सकते हैं कि अवाम कितनी परेशान है, और ये आने जाने वाले भी इतने तंग हो रहे हैं। लिहाजा यहाँ से पानी ख़त्म किया जाए। आज जैसा कि शहरियों का यही कहना है कि जगह जगह सीवरेज का पानी जमा होने से 5 मोरी पर पानी जमा है यहाँ पर है, जिससे शहरी जो है लाइनों पर से जो है गुजरने पर मजबूर हैं, जो किसी वक्त ट्रेन के गुजरने की आमद से जो है हादसा का सबब बन सकता है। शहरी और डिप्टी कमिश्नर इमरान खान के मुतालबा है खुदारा सीवरेज का जो इंतजाम बेहतर बना जाए, ताकि यहाँ पर जो शहरी को सहूलतें मैसर हों। जी ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजिरान ज़िला दादू ने तहसील सतह तक तंजीमी यूनिट कायम करने का फैसला किया है। व्यापारियों का कहना है कि तहसील सतह तक तंजीमी यूनिट कायम होने से मुकामी सतह पर मसाइल हल होंगे। निजी होटल में व्यापारियों ने मरकपुर दादू यूनिट का एहतमाम करके अहदेदारों को मुंतखब किया। मज़ीद तफसीलात दादू से अल्लाह बख्श खुश की रिपोर्ट में। पाकिस्तान अंजुमन ताजरान ज़िला दादू की जानिब से निजी होटल में मकामी सतह पर तंजीम साजी से मुतल्लिक मरकपुर दादू यूनिट के क़याम पर तकरीब मुनक़िद की गई। तकरीब में मुख्तलिफ व्यापारी तंजीमों के रहनुमाओं, शहरियों, सिविल सोसाइटी के रहनुमाओं ने भी शिरकत की। आज जो हमारा प्रोग्राम था, ये इसकी क़यादत ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान ज़िला दादू के चेयरमैन गुलाम नबी लिगारी और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी अहमद खान ज़ोहर, इनकी क़यादत में तंजीमी यूनिट क़याम किया गया है। इंशाअल्लाह ताला इसको हम आगे भी बढ़ाएंगे और हम तहसील में जाएंगे, जैसे मेयर है, केनशाह है, उसमें भी जो हम अपना जो प्रोग्राम जारी और सारी रखेंगे। अब हमारे जो थोड़े से देहाती इलाके में जो हमारे कारोबारी लोग हैं, जैसे दुकानदार हैं, छोटे छोटे दुकानदार हैं, उनके मसाइल हल करने के लिए ये हमने यूनिट का क़याम किया है। जैसे हमारे ऊपर जो क़यादत है हमारी ज़िले सतह तक ये तक ये आवाज़ पहुँच सके। तकरीब की इख्तिताम पर मेहमान खुसूसी को ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान ज़िला दादू की जानिब से सिंध की सकाफत अजरक टोपी के तहफ़ भी पेश किए गए। अलावा खुश, नुमाइंदा 5 न्यूज़ दादू। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग वस्ती पंजाब के नौ मुंतखब सदर चौधरी हमीदुल हसन गुज्जर के एजाज़ में ज़ोहराना दिया गया है। ज़ोहराने की तकरीब में पार्टी ओहदेदारान और कारकुनान ने भरपूर शिरकत की है। ज़ोहराने की तकरीब का एहतमाम मरकज़ी मुस्लिम लीग के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी खालिद गुज्जर ने किया, जिसमें पार्टी कायदीन, ज़िला व मकामी ओहदेदारान और कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। ज़ोहराने में मरकज़ी मुस्लिम लीग के सदर इंजीनियर आदिल खलीक,
जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मुजम्मिल इकबाल हाशमी, नायब सदर नासिर महमूद घमन, हाफिज नवीद और उमर यासिर समेत पार्टी के अहम कायदीन और सैकड़ों कारकुनान भी मौजूद थे। तर्जुमान चौधरी हमीदुल हसन गुज्जर ने कहा कि पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग रिवायती सियासत से हटकर खिदमत की सियासत की एजेंडे पर अमल पैरा है। हम इल्ज़ाम तराशी इंतशार की सियासत को परवान नहीं चढ़ाएंगे बल्कि मुल्क को मुफाहमती सियासत की जानिब लेकर जा रहे हैं। सदर लाहौर इंजीनियर आदिल हलीक और जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मुजम्मिल इकबाल हाशमी ने कहा कि पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग सियासत से इख्तलाफियात किरदार रवादारी को देने की अलमबरदार है। तर्जुमान नायब सदर नासिर महमूद घुमन ने कहा कि नौजवान हमारे असल हर अव्वल दस्ता हैं, इन्हें पार्टी में मुनज़्ज़म करके हर यूनियन काउंसिल तक तंजीम साजी को तेज़ किया जाएगा। कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान ने हसन परवाना और मदनी पार्क का अचानक दौरा किया। मदनी पार्क में सफाई और इंतजामात की अबतर सूरत हाल पर सख्त बरहमी का भी इजहार करते हुए असिस्टेंट डायरेक्टर इंचार्ज जोन और पार्क इंचार्ज फौरी मुअत्तल कर दिए गए हैं। कमिश्नर आमिर करीम खान ने पार्क में खुसूसी बच्चों की कॉर्नर की अबतर सूरत हाल पर नाराजगी का भी इजहार किया। कमिश्नर आमिर करीम खान और वॉकिंग ट्रैक, लॉन और सफाई की सूरत हाल बेहतर बनाने का हुक्म भी दिया और हसन परवाना पार्क में बंद फिल्ट्रेशन प्लांट को फौरी फॉल करने की हिदायत जारी की और बाउंड्री, ग्रिल, पर्ल लाइट्स की फाली पार्क की बेहतरी के लिए 10 दिन की डेडलाइन दे दी गई है। कमिश्नर आमिर करीम खान ने शहरियों से मुलाकात भी की। शुजाबाद में केबल वाले पुल के करीब जहरीली सब्जियां खाने से एक ही खानदान के 3 अफराद की हालत गैर हो गई है। रेस्क्यू ने तीनों अफराद को तशवीशनाक हालत में तिब्बी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। अहले खाना का कहना है कि उन्होंने सब्जियां खेतों से तोड़कर खाना बनाया था। खाना खाने के बाद ही उनकी हालत गैर हो गई। जहरीली सब्जियां खाने से हालत गैर होने वालों में मोहम्मद रफ़ीक, रुखसाना और मोहम्मद अजहर शामिल हैं। मीरपुर माथेलो में IBA सखर टेस्ट पास 210 असातिज़ा में ज्वाइनिंग ऑर्डर तकसीम करने की तकरीब का इनेकाद किया गया है। तकरीब में मेहमान खुसूसी पीपल्स पार्टी ज़िला घोटकी के सदर मीर बाबर खान और चेयरमैन ज़िला काउंसिल घोटकी बंगल खान महर थे। मीरपुर माथेलो ज़िला काउंसिल हॉल में IBA सखर के टेस्ट पास होने वाले 210 PST और GST असातिज़ा में ज्वाइनिंग ऑर्डर तकसीम करने की मुनक़िदा तकरीब में पीपल्स पार्टी ज़िला घोटकी के सदर मीर बाबर खान और चेयरमैन ज़िला काउंसिल घोटकी बंगल खान महर का कहना था कि ज्वाइनिंग ऑर्डर्स हासिल करने वाले असातिज़ा तालीम की बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा करें। पीपल्स पार्टी ने ज्वाइनिंग ऑर्डर देने पर अपना वादा पूरा कर दिया है। तकरीब से डिप्टी कमिश्नर घोटकी डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली जैदी ने कहा कि नए असातिज़ा को चाहिए कि वो सच्चाई और ईमानदारी से अपने फ़राइज़ सर अंजाम दें। डायरेक्टर एजुकेशन एलिमेंट्री, सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी सखर हाफिज शहाबुद्दीन अंधर ने कहा कि सिंध हुकूमत हमेशा तालीम को अपनी अवलीन तरजीह देती है। जबकि आइनी तकरीब में EV घोटकी हाफिज लाल मोहम्मद, जबकि CMO इमरान सयाल, तहसील एजुकेशन ऑफिसर काजी लतीफ़ुल्लाह समेत महकमा तालीम के अफसरान ने बड़ी तादाद में शिरकत की है। उधर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़ेर इंतज़ाम बहावलपुर मुख्तलिफ महकमों की असामियों के लिए टेस्ट जारी हैं, जिसमें तकरीबन 7,816 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। मेंबर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन सिद्दीक शेख ने मुख्तलिफ इम्तिहानी मराकज़ का भी दौरा किया है। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़ेर इंतज़ाम पंजाब के सरकारी महकमे जिनमें LDA टीपा में असिस्टेंट डायरेक्टर समेत एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, वेलफेयर, बैतुल-माल, टूरिज़म एंड म्यूज़ियम डिपार्टमेंट, पंजाब माइनस एंड मिनरल्स डिपार्टमेंट और हाउसिंग, अर्बन एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की मुख्तलिफ असामियों के लिए टेस्ट लिए जा रहे हैं, जिनमें बहावलपुर समेत मुल्तान रीजन और DG खान रीजन के उम्मीदवार शामिल हैं। इस मौके पर मेंबर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन सिद्दीक शेख ने पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से किए गए इंतजामात का तफसीली जायजा लिया। मुल्तान में चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल और सदर कौमी एकजहती काउंसिल हाफिज मोहम्मद ताहिर मोहम्मद अशरफी का काफिला अम के हमरा पहुँचने पर काफिले में मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के जद उलमा कराम शामिल थे, जो वहदत, हम आहंगी और पैगाम पाकिस्तान का पैगाम लेकर आए। कमिश्नर ऑफिस में हाफिज ताहिर अशरफी की सदारत में डिवीजनल आम कमेटी इंतजामिया का इजलास हुआ है, जिसमें कमिश्नर आमिर करीम खान, डिप्टी कमिश्नर और दीगर अफसरान शरीक हुए। इजलास में मुहर्रम उल हराम के दौरान अमन अमान की सूरत हाल और मुख्तलिफ मसालिक के दौरान हम आहंगी पर इत्मीनान का भी इजहार किया गया।
पत्तों की हफीदाबाद में रुकन कौमी असम्बली राना मोहम्मद हयात खान और रुकन सूबाई असम्बली महमूद अनवर की जानिब से खुली कचहरी का इनेकाद किया गया है। खुली कचहरी में अवामी मसाइल सुनने और फौरी अहकाम भी जारी कर दिए गए हैं। पत्तों की हबीबाबाद में मुनक़िदा खुली कचहरी के दौरान अवाम ने तालीम, पानी, बिजली, गैस, सफाई सुथराई, सेवरेज और दीगर बुनियादी सहूलियात से मुतालिक अपने मसाइल पेश किए। रुकन कौमी असम्बली राना मोहम्मद हयात खान और मोहम्मद अनवर ने मौके पर मौजूद मुतालिका महकमों के अफसरान को अवामी शिकायत का फौरी नोटिस लेने और उनके हल के लिए अमली इक़दामात करने की भी हिदायत की है। राना मोहम्मद हयात खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अवामी मसाइल का हल उनकी अवलीन तरजीह है और खुली कचहरी जैसे इक़दामात का मकसद अवाम को बराह रास्त रिलीफ फराहम करना है। अहमदपुर शर्किया में 62 अफराद ने मामूली तनाज़े पर एक गरीब शहरी को बेहिमाना तशद्दुद का निशाना बना डाला है। शदीद जख्मी और बेहोश होने वाले शहरी को अहले इलाका ने तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके चंद मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। अहमदपुर शर्किया के नवाही इलाके चक लोहारा में 62 अफराद ने मामूली तनाज़े पर गरीब शहरी को डंडों, मुक्कों और लातों से जख्मी कर दिया। वाक़े की फौर बाद अहले इलाका ने मुतासिर शख्स को तशवीशनाक हालत में मुकामी अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस थाना नौशेरा जदीद ने वाक़े का नोटिस लेते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया है। रुक करेंगे अब शुजाबाद का, जहां रशीद शाह गेट के इलाके में मामूली तल कलामी मुसल्लह मुलजिमान एहतशाम और दानियाल ने फायरिंग करके नौजवान अब्दुर्रहमान की जिंदगी का खात्मा कर दिया। थाना सिटी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। 5 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। पाक पतन के नवाही गांवों में मूसलाधार बारिश के बाद मकान की छत गिर गई, जबकि गांव 14 SP खस्ता हाल मकान की छत गिरने का वाकया मलबे तले दबकर एक खातून जख्मी हो गई हैं। रेस्क्यू स्टाफ ने खातून को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम कर दी है। कश्मीर पुलिस और रेंजर्स का चोलियानी और जाफरी गैंग के खिलाफ थाना करमपुर जमाल की हदूद में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन में 2 खतरनाक डाकू हलाक और 5 जख्मी हो गए, जबकि 3 ठिकाने नजर आतिश कर दिए गए हैं। SSP कश्मीर का कहना है कि कार्रवाइयां जराइम के मुकम्मल खात्मे तक जारी रहेंगी। चोलियानी और जाफरी गैंग के खिलाफ ऑपरेशन में पुलिस, रेंजर्स, SP इन्वेस्टिगेशन, CIA, तमाम SHOs और मददगार फोर्स और रैपिड रिस्पांस टीमों ने हिस्सा लिया। फायरिंग के तबादले में 2 खतरनाक डाकू फतेह चोलियानी और अब्दुल रज़ाक चोलियानी मारे गए। पतों की शहर और गिरदोनवाह में आवारा कुत्तों की भरमार, जबकि मेगा रोड पर आवारा कुत्तों ने 5 साल रशीदा नामी मासूम बच्ची को नोच डाला है। बच्ची को जख्मी हालत में तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पत्तों की मुंतकिल कर दिया गया है। पत्तों की मेगा रोड पर 5 साल रशीदा नामी मासूम बच्ची अपने घर से बाहर निकली तो आवारा कुत्तों ने उसे भंबोर डाला। बच्ची को जख्मी हालत में तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। बच्ची का चेहरा ज़्यादा मुतासिर हुआ है और जिस्म के दीगर हिस्सों पर भी जख्म आए हैं। गहरे बादल, ठंडी हवाएं और हल्की बारिश से अहमदपुर शर्किया में मौसम सुहाना हो गया है। गिरदोनवाह में सुबह सवेरे तेज ठंडी हवाओं के साथ आसमान पर गहरे स्याह बादलों का राज है, जबकि हल्की बारिश से गर्मी का भी जोर टूट गया है। अहमदपुर शर्किया और गिरदोनवाह में आज सुबह का आगाज ठंडी और तेज हवाओं के साथ हुआ, जब आसमान पर गहरे स्याह बादलों ने डेरे डाले और हल्की हल्की बारिश ने गर्मी का जोर तोड़ दिया। ननकाना साहब और गिरदोनवाह में वक्फे से शदीद बारिश ने हर तरफ जल थल एक कर दिया है। निकासी आपके नामुनासिब इंतजामात की वजह से शहर भर की गलियां और बाजार पानी से भर गए हैं, जिसके बाद शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। मानसून की बारिश ने इंतजामिया की कारकर्दगी पर पोल खोल के रख दिया। गली मोहल्ले कई फुटपाथ पर पानी जमा हो गया, जिससे शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। उधर फैसलाबाद गिरदोनवाह में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। बारिश के बायस मुतअद्दिद इलाकों की बिजली बंद हो गई है। शहर और गिरदोनवाह में वक्फे से कहीं बारिश और कहीं बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। शहरी इलाकों में बारिश के बायस सड़कें पानी खड़ा हो गया, जिससे शहरियों को सफ़र करने में शदीद मुश्किलात का भी सामना है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 रोज़ में बारिश का सिलसिला जारी रहने का भी इम्कान है, जबकि महकमा वासा की तरफ से सड़कों से पानी निकालने का सिलसिला भी जारी है।
ओकाड़ा शहर और गिरदुनवाह में कई घंटों से मूसलाधार बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। शहर तालाब का मंजर पेश करने लगा। आसमानी बिजली गिरने से लड़की समेत 2 अफराद जख्मी हो गए हैं। ओकाड़ा शहर और मुज़ाफ़ात में बारिश के बायस कारोबारी निज़ाम ज़िंदगी मुअत्तल होकर रह गई है। मुतअद्दिद इलाकों में बिजली का निज़ाम भी मुअत्तल हो गया है। नशेबी आबादियों में बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया। बल्दिया और इंतज़ामिया की तरफ से निकासी आप के लिए कोई खातिर ख्वाह इंतजाम नज़र नहीं आ रहे। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त के लिए इतना ही। कुछ देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। रहिए बाखबर 5 न्यूज़ के साथ।